এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিধেয়ক গৃহীত কৰিব পাৰিবনে চৰকাৰে? বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ সংখ্যা নাই নেকি চৰকাৰৰ হাতত? উত্থাপনৰ দিনাই 2/3 সমৰ্থন নাপালে চৰকাৰে। मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, मैं माननीय सदस्यों से प्लीज बैठिए, एक बात सुनिए। আজি কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে লোকসভাত উত্থাপন কৰে এক দেশ এক নিৰ্বাচন আইন প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে সংবিধানৰ 129তম সংশোধনী বিধেয়ক। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. With your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, Honorable Speaker, sir, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। আশা কৰা হৈছিল শাসকীয় পক্ষৰ লগতে একাংশ বিৰোধীৰো সমৰ্থন লাভ কৰিব চৰকাৰে, কিন্তু মূৰকত সেয়া দেখা নগ'ল। বিধেয়কখন যুটীয়া সংসদীয় কমিটিলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে হোৱা ভোটগ্ৰহণত 2/3 সমৰ্থন লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল চৰকাৰ। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। সদনত উপস্থিত আছিল 461 জন সদস্য। ইয়াৰ 2/3 সমৰ্থনৰ বাবে প্ৰয়োজন আছিল 307টা ভোটৰ। চৰকাৰে লাভ কৰে মাত্ৰ 263টা ভোটহে, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে পৰে 198টা ভোট। আজিৰ বিভাজন ভোটত বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাহেঁতেন চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱ পৰাজিত হ'লহেঁতেন। দৰাচলতে পূৰ্ণ শক্তিৰে হোৱা হ'লেও NDAৰ হাতত মাত্ৰ 293 জন সাংসদে আছিল। In the Lok Sabha today, opposition Congress party opposed to it. In the 2/3 of majority was needed for the bill to be passed, the amendment to be passed, and that means in the total members present were 461. In that thing, 2/3 means 307 was needed, but the government got 263. And the opposition got 198. Therefore, they are not got 2/3. But as we all know that this bill is this stage, in the introduction stage, it is simple majority which speaks. But today itself, if you would have passed the constitutional amendment, this bill would have been defeated. উত্থাপনৰ পিছতে দীৰ্ঘ সময় ধৰি বিধেয়কখনৰ ওপৰত বিতৰ্ক চলিল, আৰু বিতৰ্কৰ মাজতে চৰকাৰী পক্ষই ঘোষণা কৰিলে বিধেয়কখন অধিক নিৰীক্ষণৰ বাবে যুটীয়া সংসদীয় কমিটিলৈ প্ৰেৰণৰ। माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी, और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। জেপিচিলৈ প্ৰেৰণৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে কংগ্ৰেছ দলে। इंट्रोड्यूस हुआ था और जेपीसी को चला गया। हाँ, जेपीसी को ठीक भेज दिया। जेपीसी में हम लोग भी मांगते, जेपीसी में विचार विमर्श होकर तभी पूरी तरह से वेट करके
कि किस तरह से वेटिंग उसकी करके तभी उसको बिल को जो आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं, इसलिए उस बिल में हम लोग संशोधन की बात कर रहे हैं। কিন্তু কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দলসমূহ আৰু বহু আঞ্চলিক দলৰ অভিযোগ ইয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে। खर्च को कम करने के लिए ये भारत के पूरे संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं, चुनाव आयोग को और ये ताकत देना चाहते हैं। वो चुनाव आयोग जहां पर कमिश्नर्स की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं, वो चुनाव आयोग जिसकी कमिश्नर्स की नियुक्ति में पूरा प्रधानमंत्री खुद देखते हैं। तो इस प्रकार की गैर संवैधानिक बिल का आज हमने विरोध किया। কিন্তু শাসক পক্ষই সজোৰে খণ্ডন কৰিছে এই অভিযোগ। इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इसीलिए इसको सभी पार्टी इसमें जो कुछ भी आपका सुझाव है, आपका नया आपका कुछ विचार है तो आप बताइए, लेकिन विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं। सर कांग्रेस विरोध कर रही है, खिलाफ है सर, वो अपोजिशन कह रही है फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ। कैसे फेडरल स्ट्रक्चर के विचार है? हमने तो कुछ अधिकार ले रहे हैं क्या? जब भी एक राज्य चुन के आता है तो आप जैसे हम आर्टिकल 356 तो यूज नहीं कर रहे हैं, हम उनका अधिकार कम कर रहे हैं, उनका लेजिस्लेटिव पावर कम कर रहे हैं क्या राज्यों का? हम राज्यों का विधानसभा का अधिकार जो है वो कम कर रहे हैं क्या? राज्यों का एग्जीक्यूटिव पावर कम कर रहे हैं क्या? क्या कम कर रहे हैं? इसमें एक साथ चुनाव होगा और अपने अधिकार आपके पास रहेगा, केंद्र सरकार के अधिकार अपने पास रहेगा, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर का क्या है? আনহাতে এক দেশ এক নিৰ্বাচন কমিটিৰ অধ্যক্ষ ৰামনাথ কোবিন্দৰ যুক্তি এই নীতি আহিলে জিডিপি বৃদ্ধি হ'ব। ऐसा मोटे तौर पर आज जो है विश्व इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में देश की हमारी इकोनॉमी जो है पिछले 23-24 में 7.2 थी, 7.2 राइजिंग इकोनॉमी में है इंडिया की। 7.2 में यदि आप 1.5 और ऐड कर दें तो आपका कितना होता है? 9.7। अब ये 9.7 और जिस दिन हमारी इकोनॉमी 10 और 10.5 और 11 के बीच में पहुंच जाएगी, उस समय हमारा देश जो है वो जो इकोनॉमी की लाइन में जो 3 या 4 देश खड़े होंगे उसमें उस पंक्ति में हमारा देश भी खड़ा हो जाएगा। 129তম সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক প্ৰতিলিপি অনুসৰি যদি লোকসভা বা কোনো ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ আগতে ভংগ হয়, মধ্যকালীন নিৰ্বাচন কেৱল সেই ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যকালৰ বাবেহে অনুষ্ঠিত হ'ব। এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিজেপিৰ 2024 চনৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ অংশ আছিল।